بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز بدھ کو ہوگی۔ ملک بھر میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز بدھ کو ہوگی۔ ملک بھر میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ آپ کو آگاہ کریں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں عید الاضحیٰ 21 جولائی بروز بدھ کو ہوگی۔ ملک بھر میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ فیصل آباد میں کورونا کی چوتھی لہر کا خدشہ، پارس قرنطینہ سینٹر ایک بار پھر فعال کر دیا گیا۔ 55 بین الاقوامی مسافروں کو پارس سینٹر میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران فیصل آباد میں مزید 7 افراد کا کورونا مثبت آیا۔ ٹوبہ اور جنگ میں 2 نئے کیسز، جبکہ چنوٹ میں ایک شخص میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ پارس کوارنٹین سینٹر کو فعال کرتے ہوئے 55 بین الاقوامی مسافروں کو پارس سینٹر میں کوارنٹین کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول کا کہنا تھا کہ افغانستان سے واپس مسافر 10 روز تک یہیں قیام کریں گے۔ 8ویں روز کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ منفی آنے پر مسافروں کو ان کے گھروں کو روانہ کیا جائے گا۔ NCOC کی جو نئی ہدایت کے مطابق جو لوگ افغانستان سے واپس پاکستان جو ہیں لائے گئے ہیں، ان کو یہاں پہ اپنے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر 10 دن کے لیے ہم نے یہاں پہ کوارنٹین کی ہے، اور ان کا جو ہے 8ویں دن ٹیسٹ ہوگا، اور جن کا نیگیٹو ٹیسٹ ہوگا ان کو گھروں میں بھیج دیا جائے گا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں 9 سے 18 جولائی تک ہفتہ کورونا SOPs منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت ہوٹلز، ریسٹورنٹس، شادی ہالز، سینماز اور جمز کے لیے خصوصی SOPs بنیں گے۔ داخلی راستوں پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے لیے کاؤنٹر بنائے جائیں گے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب کا چلڈرن اسپتال اور جنرل اسپتال سمن آباد کا دورہ کیا گیا۔ میاں فاروق حبیب نے مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کردہ 2 ڈائلسس مشینوں کا افتتاح کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ بغیر جدوجہد کے لیڈر نہیں بن سکتے۔ کشمیر بچاؤ مہم ابو بچاؤ مہم میں بدل چکی ہے۔ مریم نواز عدالتوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ بڑے خاندان سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت کا حق مل گیا ہے۔ نواز شریف جو کہ کرپشن کی وارث مریم صفدر بنی ہوئی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا، ٹیٹیوں کا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا نظام، منی لانڈرنگ کا نظام رائج رہے۔ یہ ساری ان کی تگ و دو اس کام کے لیے ہے۔ میاں فاروق حبیب کا موقف تھا کہ اب سبھی کا احتساب ہوگا۔ 450 ارب روپے نیب نے وصول کیے ہیں۔ افغان مسائل پر عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا ہے۔ احتساب کے نظام کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا، مضبوط ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ پہلی بار ہے ان کو ہاتھ پڑا ہے۔ 450 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب ابھی تک جو نمبر آئے ہیں وہ ریکور کر چکا ہے۔ 33 ارب روپیہ زرداری کے کیسز کے اندر جو ہے وہ ریکور ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ التوائیں لیتے ہیں، تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ مریم صفدر جو ہیں یہ دلیر بنے نا، یہ بزدل کیوں بنی ہوئی ہیں؟ وزیر مملکت نے دسمبر تک پنجاب کے ہر گھر میں ہیلتھ کارڈ میسر ہونے کی اچھی خبر بھی سنائی۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں ضلع ٹوبہ کو مثالی ضلع بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ضلعی ترقیاتی کمیٹی کے اجلاس میں 8 ارب کے صوبائی اور 2 ارب کے وفاقی منصوبوں کی اجازت دے دی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں آئندہ 2 سال میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے 10 ارب روپے کے منصوبے منظور کر لیے گئے۔ MNA ریاض فتیانہ کی زیر صدارت اجلاس میں ضلع بھر کے تمام صوبائی وفاقی منصوبوں کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ پنجاب آشفا ریاض فتیانہ، اراکین صوبائی اسمبلی سعید احمد سعیدی، بلال وڑائچ، سیدہ سونیا علی رضا نے شرکت کی۔ PTI مرکزی نائب صدر چودھری محمد اشفاق، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، DPO رانا عمر فاروق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم، پارٹی ٹکٹ ہولڈر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے چیئرمین قائمہ کمیٹی اور صوبائی وزیر کو کورونا ویکسینیشن بارے بھی آگاہ کیا۔ چیف منسٹر جو ڈیولپمنٹ پیکج ہے وہ تقریباً کوئی 8 ارب روپے ہے۔ 8 ارب روپیہ پنجاب حکومت کی طرف سے اگلے 2 سال میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کی 4 تحصیلوں پہ لگایا جائے گا۔ وفاق کی گرانٹ اس کے علاوہ ہے، تو اگر ساری گرانٹ اکٹھی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 10 ارب روپیہ اگلے 2 سالوں میں ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں لگے گا۔ ریاض فتیانہ کا کہنا تھا یونیورسٹی آف کمالیہ، ہر تحصیل میں ڈگری کالج، ٹراما سینٹر، نالی اور سولنگ کے متعدد منصوبے منظور کیے گئے ہیں۔ MPA سعید احمد سعیدی کا کہنا تھا 5 کروڑ سے کم مالیت کے منصوبے 3 ماہ اور باقی تمام منصوبے آئندہ 2 سال میں مکمل کیے جائیں گے۔
2.5 अरब के करीब जो फंड्स हैं, जिसमें सीएम पैकेज है ऑन गोइंग स्कीम की मद में इंशाल्लाह तहसील टोबा टेक्सिंग में खर्च होंगे। इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसमें अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी टोबा टेक्सिंग है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर है, जिसमें पैरामेडिक्स कॉलेज है, जिसमें हमारे डिग्री कॉलेज के 10 करोड़ से एडिशनल क्लासरूम है। गवर्नमेंट फरीदाबाद कॉलेज के लिए 5 करोड़ के एडिशनल क्लासरूम है, जिसमें एक हमारा जदीद स्कूल प्राइमरी स्कूल है, जिसकी तादाद तकरीबन 1500 के करीब है, लेकिन छोटियाँ बच्चियाँ बाहर बैठती थी, उसके लिए खुसूसी फंड दिया गया है। इजलास में गुज़िश्ता माली साल की स्कीमों के इतराज़ात खत्म करवा के इन्हें फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ तैयब सैफ, टोबा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सनअत और तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने फैसलाबाद का दौरा किया, सनअतकारों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सनअत और तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनअतकारों से मुलाकात की, जहां सनअतकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के मशीर को अपने मसाइल से आगाह किया। इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि जिस तरह हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तकरीबन 18% ग्रोथ दिखा रहा है, तो हमारा जो SME है वो अनफॉर्चुनेटली 2-3% की ग्रोथ के ऊपर है। और SME की अगर आप ग्रोथ की बात करें तो किसी भी माशरे की इकॉनमी का SME सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो आपके मुल्क के अंदर, आपकी इकॉनमी के अंदर, आपकी आबादी के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने आल पाकिस्तान बेडशीट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान से मुलाकात की। बाद में PHMA हाउस में पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों से भी मुलाकात की, जहां MNA फैजुल्ला कमोका और एडवाइजर टेक्सटाइल पॉलिसी जफर इकबाल सरवर भी मौजूद थे। सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू में अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने कहा, SME सेक्टर के मसाइल को हल करने के लिए सनअतकारों को ईद के बाद मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। आज पता लगा कि ये उनकी हालत तो बहुत ख़राब है, और 26 तारीख को जब मैं उज़्बेकिस्तान से वापस आ जाऊंगा, उनको मैं बुलाया हूँ इस्लामाबाद, और उनके जो मसले को दुरुस्त करना पड़ेगा। मशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सनअत और तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद को सनअतकारों से मुलाकात के बाद जफर इकबाल सरवर की जानिब से सरीना होटल में इशाइया भी दिया गया। कैमरामैन टीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की चौधरी शेर अली की रिहाइशगाह आमद, साबिक वज़ीर मुमलिकत की अहलिया के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा उनकी हमशीरा सादिया अब्बासी भी थीं। साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और इसरार मुन्ने खां भी शेर अली के घर पहुंचे। रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों ने चौधरी शेर अली के साथ ताज़ियत की। इस मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आबिद शेर अली को वापस न आने की ताकीद की थी ताकि हुकूमत उन पर कोई झूठा केस न बना दे। आबिद शेर अली साहब की बहुत ख्वाहिश थी, बल्कि उन्होंने वहाँ से बुकिंग भी करवा दी थी कि वापस पाकिस्तान आए, लेकिन हमने उनको सिर्फ मशवरा ही नहीं दिया बल्कि ताकीद भी की कि यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है और आपको भी अगर एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया गया तो जो बचिए हैं उनका ख्याल करने वाला कौन होगा। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि इलेक्शन रिफॉर्म पर कोई गुफ्तगू नहीं की गई। 15 मिनट्स में बिल पास करके असम्बली भेज दिया गया। अदालती फैसलों को नैब पढ़ ले कि उनका क्या हाल किया गया है। इस हुकूमत का हर लम्हा अवाम पर भारी है। अफगान अवाम की राय को अहमियत देनी चाहिए, इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए। उनका कहना था कि चीनी की मद में 800 अरब रुपए खाया जा चुका है। कौन सा वजीर है जो करप्ट नहीं है? कौन सा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं है? हजारों अरब रुपए के स्कैंडल हैं। सिर्फ चीनी की मद में 800 अरब खाया जा चुका है और हर रोज उसके अंदर 1 अरब का इजाफा होता जाता है और आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पर करप्शन का कोई केस नहीं, कराए के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। झंग में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में भी
सेंटर कायम हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत डिवीजन भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात आज से शुरू कर दिए गए हैं। 1,13,467 उम्मीदवार शरीक होंगे, जिनके लिए डिवीजन भर में 355 इम्तिहानी मराकज कायम कर दिए गए हैं। आज इंटरमीडिएट के स्टैटिस्टिक, साइकोलॉजी और फलसफे का इम्तिहान लिया गया। पेपर स्मार्ट सिलेबस के तहत लिए जा रहे हैं। इस साल किसी मजमून का प्रैक्टिकल इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। जंग में भी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में सेंटर्स कायम किए गए हैं। रेजिडेंट इंस्पेक्टर और प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हयात अलियाना ने सेंटर्स का दौरा किया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार भी किया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 2 सेंटर्स के बजाय अब 4 सेंटर्स कायम होंगे, ताकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक SOP के तहत 6 फीट के फासले पे हमने स्टूडेंट को बिठाए हुए हैं। जहाँ पे पहले 4 कमरे हुआ करते थे, अब 8 कमरों में ये एग्ज़ाम होगा। तो आज तो तादाद थोड़ी थी, एक ही कमरा था। तो वैसे यहाँ पे 3 सेंटर हैं, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत अच्छे चलेंगे। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 27 जुलाई तक जारी रहेंगे, जबकि मैट्रिक के इम्तिहानात 29 जुलाई से शुरू होंगे, जिनके लिए सेंटर्स पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवैस खान, सिटी 41, जंग। अरसे दराज से टूट का शिकार जंग रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात मियां फारूक हबीब और MNA शेख खुरम शहजाद ने इफ्तिताह किया। जंग रोड के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात मियां फारूक हबीब का कहना था कि शहरियों को अरसे दराज से मसला दरपेश था, जो अब हल कर लिया गया है। इनका मजीद कहना था कि जंग रोड के अलावा चनियोट रोड और जड़वाला रोड को भी जल्द तामीर करवा रहे हैं। ताहम अवामी मुश्किलात के पेश नज़र रोड को जल्द तामीर करवा रहे हैं। टोबा में मवेशी मंडियां सज गई। मंडी में रवायती गहमा गहमी तो नजर नहीं आई, मगर जानवरों के ज्यादा निर्ख सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टैक्सिंग में 6 मवेशी मंडियां लगाई गईं। मवेशी मंडियों में इंतजामिया के इंतजाम मुकम्मल, मगर खरीदार कम आए। व्यापारी भी अभी मंडियों में वाफर माल लेकर न पहुंचे। शहरी जानवरों के निर्ख ज्यादा होने का शिकवा करते नजर आए। अभी तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ना कोई लोग खरीदार, बकरे भी चांदे खड़े हैं, इस करके रेट भी तेज हों। शहरियों का कहना था कि 20 किलो बकरे के निर्ख 40,000 से ज्यादा मांगे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन इंतजार करेंगे, फिर जानवर खरीदेंगे। लाइव स्टॉक ऑफिसर का कहना था कि शाम के औकात में जानवरों की खरीदो फरोख्त ज्यादा होती है। महकमा लाइव स्टॉक की जानब से ये मंडी में हमारा कैंप कायम किया गया है, जिसमें हर किस्म की मेडिसन जानवरों की एमरजेंसी के हवाले से, या जो लोग जानवर को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खिला देते हैं खुशी में, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। लाइव स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर हबीब सुल्तान का कहना था महकमा लाइव स्टॉक का अमला 2 शिफ्टों में ड्यूटी सरंजाम दे रहा है, ताकि बीमार और चीचड़ ज़दा जानवरों को मंडी में दाखिले से रोका जाए। मंडियां तो सज चुकी हैं, मगर मंडियों में जानवर अभी कम हैं, जिसकी वजह से मंडियों में जानवरों का रेट ज़्यादा और ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद राशिद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद की मक्की मार्केट में ताजरों के इंतखाबात सुल्तान बट सदर मुंतखब हो गए। साबिक चेयरमैन एप्टमा चौधरी हबीब गुजर समेत ताजिर बरादरी ने मुबारकबाद दी। ये रिपोर्ट देखिए। खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर सुल्तान बट का कहना था कि 21 बरस बाद इलेक्शन हुए हैं, अब मार्केट के दरीना मसाइल को हल किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि रजिस्ट्रियों का मसला भी बहुत अहम है। ऐसे में जिन ताजरों ने पैसे अदा किए हैं, इन्हें मलकियती हकूक दिलाएंगे। तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे मार्केट के मसले मसाइल जो हैं, वो रजिस्ट्रियों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कल भी हमारी CO साहब से मीटिंग हुई है। इंशाअल्लाह ताला पहली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इनके जो पैसे जमा हुए हैं, इनको उनकी रजिस्ट्री और मालकाना हकूक दिलाएंगे। इस मौका पर नौमुंतखब सदर को ताजरों ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि साबका चेयरमैन एप्टमा चौधरी हबीब गुजर का कहना था कि सुल्तान बट सबसे बेहतर उम्मीदवार थे। सैकड़ों की तादाद में ताजरों ने इनका साथ दिया, जबकि इनकी फतह आम ताजर की ही कामयाबी है। उम्मीद है कि 21 बरस से हल तलब मसाइल का हल निकाल सकेंगे। इस मार्केट की खुशकिस्मती है, 21 साल बाद यहाँ से इलेक्शन हो रहा है, और इस इलेक्शन ने एक ऐसे ग्रुप को, जो वो भी हमारे भाई हैं मगर कारोबार से उनका तल्लुका बहुत कम था, उस ग्रुप को शिकस्त दी है जिनका इस कपड़े के कारोबार से तकरीबन कोई तल्लुक ना था।
मक्की मार्केट के ताजरों का कहना था कि सुल्तान बट की सूरत में इनका नुमाइंदा इन्हें मिल गया है। उम्मीद है कि अब मसाइल का बरवक्त हल निकल सकेगा। कैमरामैन कमर भूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह बशीर अहमद फारूकी और ट्रस्टी चौधरी यासीन की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई। इस दौरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। फैसलाबाद और टोबा में सर्वर फाउंडेशन के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इंतजामात और देखभाल और मरम्मत का काम सैलानी वेलफेयर के जिम्मे होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात के दौरान गवर्नर की अहलिया और सर्वर फाउंडेशन की चेयरपर्सन बेगम परवीन सरवर भी मौजूद थी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह बशीर अहमद फारूकी और ट्रस्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर गुफ्तगू की। चेयरपर्सन सर्वर फाउंडेशन बेगम परवीन सरवर के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। MOU के मुताबिक सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल सर्वर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद और टोबा में चलने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इंतजामात और देखभाल और मरम्मत के तमाम अमूर संभालेगी। इससे पहले भी सर्वर फाउंडेशन, महकमा पब्लिक हेल्थ और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इंतजामात सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने संभाले हुए हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर में इंसानियत की खिदमत के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। गवर्नर पंजाब और बेगम परवीन सरवर ने भी सैलानी वेलफेयर की खिदमत को सराहा। मियां हमाद क्रिकेट लीग 2021 की ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई का इनेकाद किया गया। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल सदर हाजी अकरम अंसारी और मियां हमाद जुल्फकार अंसारी ने खूबसूरत ट्रॉफी की रोनुमाई की। रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में क्रिकेट के शायकीन के लिए 12 से 16 जुलाई तक सरगोदा रोड पर मियां हमाद क्रिकेट लीग करवाई जाएगी। मियां हमाद क्रिकेट लीग 2021 की खूबसूरत ट्रॉफी की तकरीबी रोनुमाई मियां हमाद अंसारी के डेरे पर हुई। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, साबिक MPA हाजी खालिद सईद, मियां हमाद जुल्फकार अंसारी, मियां हामिद एहसन जुल्फकार अंसारी, इफ्तिखार अंसारी व दीगर ने शिरकत की। हाजी अकरम अंसारी का कहना था कि कोरोना के बाद पहला इवेंट होने जा रहा है जिसमें फैसलाबाद के लड़कों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। मियां हमाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा इवेंट जो है वो फैसलाबाद के नौजवानों के लिए, फैसलाबाद के अंदर क्रिकेट के शायकीन के लिए एक बहुत बेहतरीन इवेंट जो है वो करने जा रहे हैं। साबिक MPA हाजी खालिद सईद का कहना था कि खेलों को फरोग दिया जाए तो हस्पताल वीरान हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजर मियां हमाद अंसारी का कहना था कि बेहतरीन खिलाड़ियों और पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश इनामात भी रखे गए हैं। जिस मुल्क के अंदर मैदान खेलों से भरे होंगे वहाँ के क्लिनिक खाली होंगे और जहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होंगी उस मुल्क से बीमारियाँ भी दफन हो जाएंगी। और आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिटी है, नौजवानों को खेलों की तरगीब देना, टूर्नामेंट्स मुनक्कद करवाना, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। फैसलाबाद डिवीज़न के 7 लड़के हर टीम में हैं, 4 लड़के ओपन हैं जो मुख्तलिफ शहरों से होंगे, वो ऑल ओवर पंजाब है। इसके अलावा इनामात की तरफ से हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। हमने इसमें कैश इनामात रखे हैं, ट्रॉफ़ी शानदार बनाई है और हमने इसमें नेशनल लेवल के सिंगर इनवाइट किए हैं, सियासी और समाजी शख्सियात शामिल की हैं। तकरीब में हमाद क्रिकेट लीग के रूल्स बताए गए और खूबसूरत ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। टूर्नामेंट में हर मैच 4-4 ओवर्स का होगा और 32 टीमें शिरकत करेंगी। फातेह टीम को 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, जबकि सेकंड पोजीशन वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मैन ऑफ द टूर्नामेंट को 25,000 रुपए कैश इनाम दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कमालिया की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट जोकर क्रिकेट सुपर लीग आज से शुरू होगी। JSL की इफ्तिताही तकरीब में तमाम 6 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन चौधरी खुशी मोहम्मद जट, सरदार जफर हसन गुजर और सदाकत हुसैन ने शिरकत की। जोकर क्रिकेट सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब में राना हमाद सलीम, आसिफ रहमत, चीफ ऑर्गेनाइजर नजर हुसैन और समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में तमाम 6 टीमों ने खिलाड़ी
کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ جکڑ کنگ اور جکڑ زلمی، جکڑ کلندر، جکڑ سٹار، جکڑ یونائیٹڈ اور جکڑ سلطان کے نام سے ٹیموں کے مابین میچز کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی تقریب میں فائنل میچ میں دی جانے والی ٹرافی کی رونمائی کی گئی۔ شرکاء اور علاقہ مکینوں کی جانب سے بڑا ایونٹ کروانے پر چیف آرگنائزر نذر حسین کو مبارکباد دی گئی۔ فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ روپے اور ٹرافی اور رنر اپ کو 50,000 روپے ٹرافی دی جائے گی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال پنجاب کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مستحق خواتین میں امدادی رقوم، چیکس اور سلائی مشینیں فراہم کی گئی اور 50 خصوصی افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کی جانب سے ٹی ایم اے ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں امین بیت المال پنجاب ملک محمد اعظم، ایم پی اے فردوس رائے، چیئرمین ایف ڈی اے لطیف نظر، ڈویژنل ڈائریکٹر فاروق رضوان، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ناصر چدر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں مستحق افراد کی بڑی تعداد میں چیک تقسیم کیے گئے۔ مستحق خواتین میں امدادی رقوم، چیکس اور سلائی مشینیں تقسیم کی گئی، جبکہ 50 خصوصی افراد میں وہیل چیئر دی گئی۔ سینکڑوں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے ہیں، درجنوں ویل چیئرز تقسیم کی گئی ہیں اور درجنوں کے حساب سے سلائی مشینز غریب عورتوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ ایم پی اے فردوس رائے کا کہنا تھا ایسی تقریبات ضرورت مند افراد کی آسانی کے لیے کی جاتی ہیں۔ اس تقریب کا مقصد بچوں کی خود مختاری قائم کرنے کے لیے ہے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سلائی مشین اور چیک تقسیم کیے گئے۔ اسلامی ریاست ہونے کے ناطے سے یہ لوگوں کا حق بنتا تھا کہ ہم اپنے غریب غربا کی اور اپنے معذور لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی مدد کریں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ناصر چدر کہتے ہیں تمام مستحق لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ان کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ معذور افراد کے لیے 42 تھے، وہ تقریباً 4,20,000 کی اماؤنٹ ہے۔ جہیز فنڈ 55 لوگوں کو دیا گیا ہے، 1,16,000 روپے اس میں، 11,60,000 روپے اس میں بنتا ہے۔ تعلیمی وظائف 5,10,000 روپے کے دیے گئے ہیں اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ 43,10,000 روپے بنتی ہے جو آج کے لیے مطلب کی گیا ہے۔ ایسے افراد کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو مستحق ہو، ان کی مشکلات کو حل کیا جا سکے۔ پنجاب حکومت اور بیت المال کی جانب سے کی جانے والی یہ کاوش احسن اقدام ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہد احمد، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔